5, 4, 3, 2, 1 और खत्म। पाँच सेकंड और 9 मंजिला मकान जमीन पर। पहले कैमरे से देखिए कैसे 5 सेकंड में जयपुर में जलजला आ गया। Good evening, friends. Today we have demolished 2 number of chimneys, each of 92-meter height, successfully at Gandhinagar, Gujarat. 2 chimneys together has been done first time in India. Probably no one has done 2 chimneys together. And with this demolition, we have made ourselves strong and experienced and enriched into the demolition world. And many more things to come, and we will keep on doing the things, keep on learning. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, आज हमने गांधीनगर गुजरात में 2 92 मीटर ऊंची चिमनियों का ध्वस्तीकरण किया और इसमें इम्प्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। काफ़ी कम मात्रा में एक्सप्लोजिव यूज़ करते हुए दोनों चिमनियों को एक साथ गिराया। ये अपने आप में इस तरह का हिंदुस्तान में रेयरली किया गया है और इसमें हमें सफलता मिली है और इस इम्प्लोजन के साथ हमने अपने आप को डिमोलिशन वर्ल्ड में और ज़्यादा मजबूत और एक्सपीरियंस्ड किया है। थैंक यू। Today, 5th August 2019, we have successfully completed the demolition of the first cooling tower. This is the first time in India this job has been done by a private agency. We thank God and we thank our team and all our staff for their cooperation. And Mr. Anand Sharma has successfully done this job for us. This job was awarded to me by HR Commercial Limited. Mr. Pranav is here with me. He shows confidence on me. And we and our team successfully demolished this tower. The maximum fly rock was observed up to a distance of 60-70 meters. Vibration and sound vibration, air over pressure, everything was just under control. And tower was demolished and it has collapsed exactly in center of the tower. And this was to an extreme satisfaction level. We are able to do it. This is a great job, and this type of demolitions will be common in India now, as many of these power plants will be scrapped out, and since we have very few experts, those who are involved in such type of jobs, but slowly we are gaining experience and we are able to do this at much lower cost than the foreign peoples are used to do. The dismantling of the cooling tower, it went more than what we have planned, especially our team leader Anand Sharma and other people worked with them very hard, gave us a very good result. By God's grace, we have done it very beautifully, and thank you to the entire team. की तरफ से पानीपत थर्मल प्लांट का एक टावर डिमोलिश किया गया है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें
हमारे HR कमर्शियल का, हमारे पूरे स्टाफ का, हमारे सेफ्टी वर्कर्स का और हमारे जो अनंत शर्मा जी हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और पूरे थर्मल प्लांट का जितना भी स्टाफ था उनके भी हम बहुत बहुत आभारी। 5, 4, 3, 2, 1, fire! अब इधर रखना। 5, 4, 3, 2, 1, fire! Thank you. आज हमने गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए गांधीनगर में 118 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर का डिमोलिशन किया है, जिसका वजन लगभग 40,000 टन था। ये एक हैवीएस्ट स्ट्रक्चर आज डिमोलिश किए गए, ये दो एक साथ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसको पिछले स्ट्रक्चर के मुकाबले हमने कम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से पूर्ण किया है। इसमें चैलेंजिंग ये था कि आसपास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, जैसे गेट है, स्टोर है, इनका फ्यूल स्टोरेज टैंक्स हैं, ये सब 10, 15, 20 मीटर में थे। उसके अलावा कॉलोनी थी, 100-150 कच्चे हाउसेस जो है वो करीब 20-30 मीटर के बाद ही बने हुए हैं। तो इन सब को बचाना अपने आप में चैलेंज था। इन सब की प्रिकॉशन लेते हुए हमने इस काम को बहुत ही सफलतापूर्वक और अच्छे तरीके से किया है। രണ്ടാം സ്ഫോടനം ആൽഫ സെറീനിലെ ഒന്നാം ടവർ എന്നാൽ H2O പോലെ പൂർണ്ണമായി തകർന്നില്ല. കായലിലേക്ക് ടവറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിച്ചു വീണു. രണ്ടാം ടവർ 11:45 തകർത്തു. രണ്ടാം സ്ഫോടനം സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രകമ്പനം തീർത്തു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യ ദിന ദൗത്യം പ്രതികരിച്ചു. 100% successful, very nicely gone, no, nothing gone to water, no house damage. But we have seen some parts flying off to the water. It was a distant view. Can you correct it? Hello. Some flying movement to water, but that is just a normal procedure due to delay. Some opening, this covering gate opens and something on out. But all debris is within the boundary limit and everything is parallel to the river.
तो हिल रहा है पूरा। Yeah, good morning everyone. Today I am at Chanda Cement Works of ACC Limited, and here as per plan we were given a job to demolish 2 number of preheaters which were of a height of approximate 100 meter, and this was very challenging task, and it was very difficult to complete the job as per the safety norms of ACC, and we have done it successfully. And here with me is Mr. Ravindra Lingappa, Deputy GM, who was coordinating and supporting us on all the fronts. And we are very thankful to him. A few words about this work, Lingappa sir. Yeah, thanks Sharmaji. Today I am very glad to share you that we have demolished 100 meter preheater, 2 numbers at once. This was a very challenging task we have taken, and we did this job very safely under the guidance of Sharmaji. Earlier, before planning this job, we are very scared to execute this job, but under the guidance of Sharmaji and his confidence, seeing his experience, we have given this job to Sharmaji, and he did very safely, because we have running equipment just surrounding of this setup. We have cold dome, LSSR stacker reclaimer, and other side we have running equipment of our mills. So we
we are scared about these equipments, but he is very confident enough saying that this 100-meter structure will fall under 50 to 70 meters, and it fell under 50 meter only, and he executed this job very safely. I congratulate Sharma ji for this great work. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Behind me, this is a water tank of around 35 meter height at Panipat Thermal Power Plant. The same was attempted by someone else, which got failed. So now, after strengthening its base, we are going to demolish it today. Thank you. Good afternoon. Today we have demolished a water tank at Panipat Thermal Power Plant, which was of around 35 meter height. This was earlier attempted by some other agency, but it got failed unfortunately. So today we have tried it after strengthening its base, we have demolished it successfully. Here with us is Mr. Goyal, Safety Officer of HR Commercial Limited. And Goyal Saab, any comment about this work? How safely, direction and all this? आनंद शर्मा जी ने ये जो वाटर टैंक है इसको बहुत सक्सेसफुली और सेफली आज ये गिराया है, तो ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। पहले भी शर्मा जी ने 4 कूलिंग टावर, 2 चिमनियां बहुत बढ़िया तरीके से और बड़े सेफली और सक्सेसफुली ये गिराई थी यहाँ HR कमर्शियल की जो ये थर्मल पावर प्लांट पानीपत की साइट है। और आज का तो बहुत ही संतोषजनक है जो भी ये हुआ है। हमारा ये थोड़ा पीछे ट्राई किया था 2 हफ्ते पहले, नहीं हुआ था, दूसरी एजेंसी ने किया था, लेकिन आज हम बहुत संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं हम, ये अच्छे से काम निपट गया है। आनंद शर्मा जी को और पूरे स्टाफ को, अजय सिंह जी को और HR कमर्शियल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। You are happy with this demolition, sir? Oh, absolutely. I'm very happy. Everything proceeded as per plan. Thank you. No collateral damage. Thank you very much. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. ये आज हमने अल्ट्राटेक सीमेंट, नर्मदा सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का एक वाटर टैंक डिमोलिश किया है, जो
कॉलोनी के अंदर था और हमारे साथ अल्ट्राटेक टीम के यूनिट हेड शुक्ला साहब और बाकी जोशी जी टेक्निकल हेड गोयल साहब ये सभी मौजूद हैं। और इसमें काफ़ी पैनिक था क्योंकि ये वाटर टैंक डीजी रूम के ऊपर था, हॉस्पिटल बिल्कुल 8-10 मीटर की दूरी पे था और कॉलोनी लगभग कॉलोनी के जो क्वार्टर हैं 20-25 मीटर 30 मीटर के डिस्टेंस पे थे, तो इसको लेके काफ़ी पैनिक थे, लेकिन ये बड़ा सक्सेसफुली और ठीक जगह पे हो गया है। शुक्ला साहब बताएंगे, यू आर हैप्पी विद दिस डिमोलिशन? Yeah, definitely. We are happy and everything was done in a very safe manner and there was no other damages. थैंक यू सर। साहब खुश हैं आप? Excellent work and excellent planning and execution. Really, congratulations to the team. थैंक यू सर। आप पीछे हमारे मित्रा साहब खड़े हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको, काफ़ी टाइमली सब हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने में हमको हेल्प की और इससे भी हमको बहुत मदद मिली। मित्रा साहब की वजह से हम इस काम को विदिन 7 डेज टारगेटेड डेट पे हम इसको कर पाए। मित्रा साहब आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम किया आपने जी, तारीफ है। जैन साहब हैं FHHR HR और सिक्योरिटी की तमाम टीम, रावत साहब, इन सब लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है और इसी वजह से हम इसको टाइमली टारगेट डेट पे बिल्कुल करके कंप्लीट कर पाए हैं। जैन साहब वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी सेफली मैनर इट हैपेंड, दैट इज फैंटास्टिक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेल प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आज हम नर्मदा सीमेंट वर्क्स अल्ट्राटेक का ये वाटर टैंक डिमोलिश करने वाले हैं और यह टैंक कॉलोनी के बीच में स्थित है। इसके बगल में डीजी रूम है जिसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन टैंक का आ रहा है, उसके साइड में इनका हॉस्पिटल है और उस साइड में कॉलोनी है जो 20-25 मीटर डिस्टेंस पे है। इस तरह का टैंक किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में हम पहली बार गिरा रहे हैं, ऐसे तो हमने कई गिरा दिए हैं, लेकिन रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट के कॉन्फिडेंस शो किए जाने के बाद हम इस टैंक को आज डिमोलिश करने वाले हैं। थैंक यू। कौन कौन खास मेहमान है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आनंद शर्मा विध्वंस विशेषज्ञ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पवन त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुबह से हमें सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद शर्मा जी आपका रुख करना चाहेंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इतनी बड़ी इमारत 32 मंजिला इमारत आखिर कैसे जमींदोज की जाएगी, कौन कौन से प्रिकॉशंस बरते जाएंगे? अभी इस इमारत को जो डिसीजन लिया गया है वो इम्प्लोजन यानी विस्फोटक के जरिए गिराया जाएगा और इसमें बेसिकली 17 फ्लोर पे ब्लास्टिंग की जाएगी, जिनमें 10 फ्लोर पे प्राइमरी ब्लास्टिंग की जाएगी और 6-7 फ्लोर पे इसमें सेकेंडरी ब्लास्टिंग की जाएगी। और ब्लास्टिंग क्योंकि एक्सप्लोजिव का यूज, एक्सप्लोजिव एनर्जी का यूज लिमिटेड और एक कैलकुलेटेड तरीके से किया जाता है। आज उसी को चेक करने के लिए कि एक्सप्लोजिव का इम्पैक्ट पिलर के ऊपर कितना है, ट्रायल ब्लास्ट किया गया था। और विभिन्न पिलर्स में 13वें और अपर ग्राउंड बेसमेंट में
ये एक्सप्लोजिव लगा करके। सर, आप एक्सप्लोजन के बारे में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा डर उन लोगों को है जो आसपास रह रहे हैं। ये जानकारी दी गई हमारे सहयोगी द्वारा कि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको बोला गया कि आप खिड़की बंद रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उन तमाम लोगों को लेकर कैसे जो प्रिकॉशंस बरते जाएंगे वो आप बता दें जरा। इसमें जो पिलर हैं जहां एक विस्फोटक लगाया जाएगा उनको चारों तरफ वायर मेश से कवर किया जाएगा। 3, 4, 5 लेयर, जो डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी उतना वायर मेश लगाई जाएगी। उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फाइबर की कई लेयर लगाई जाएंगी और उसके बाद भी आउटर में 1-2 लेयर और लगाई जाएंगी। तो जिससे कोई भी कंक्रीट की जो पैलेट विस्फोटक के बाद निकल सकती है बाहर, उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा। लोगों को प्रिकॉशन इसलिए ली जाती है कि इंसिडेंटली कोई अगर बाहर निकलता है तो कम से कम कोई डायरेक्टली उसके सामने एक्सपोज ना होने पाए। इसलिए लोगों को थोड़ा सा एक शेल्टर में या साइड लेकर के रखने के लिए सलाह दी जाती है। बट जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सेफ है। इसमें विस्फोटकों को पूरी तरह से कवर करके और फिर ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे उनका इम्पैक्ट बिल्कुल लोकलाइज्ड होने की वजह से बिल्डिंग की कंक्रीट अलग होने से और स्टील उसका लोड नहीं ले पाएगी। तो स्टील बेंड होते हुए बिल्डिंग को नीचे लेके आ जाएगी। ये जरूरी भी है सर, क्योंकि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको डर है कि कहीं उन तक कोई चीज ना ऐसे पहुंचने पाए, इसलिए जरूरी भी है। हमारे साथ में रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। रुद्र विक्रम सिंह जी, उच्चतम न्यायालय ने जब ये फैसला दिया तब सबकी आंखें खुली हैं कि नोएडा में एक ऐसी इमारत भी बन रही है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है और इतनी बड़ी इमारत बन गई है, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर नोएडा प्राधिकरण को भी कटघरे में खड़ा किया गया, ऐसे लगातार कहा गया, लेकिन बावजूद उसके उस पर अमल नहीं हुआ। यह बड़ा हैरान करने वाली चीज है। देखिए, वाकई में बहुत हैरान करने वाली चीज है। और ये जो आप इसको जो ये बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये देश की जो सबसे बड़ी इमारत जो गिराई जाएगी। और इधर अपने क्षेत्र में तो आप समझ लीजिए कि पहला ऐसा वाकया है जब इतने बड़ी लागत की 2000 लोगों को रहने की जिसमें व्यवस्था की गई थी। 2000 लोग रहने वाले थे। इसमें एक सपनों का घर होता है। आपको पता है दिल्ली एनसीआर में आदमी आता है तो कितनी मशक्कत से एक एक पैसा जुटा के अपने आशियाने का इंतजाम करता है। उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कही थी, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इट इज अनहोली ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोएडा अथॉरिटी एंड बिल्डर। मतलब एक अपवित्र रिश्ता कहा था कि एक अपवित्र रिश्ता दोनों बिल्डर और जो अथॉरिटी के बीच बना है, तभी जाके 14 माले की बिल्डिंग को 40 माले की बिल्डिंग में इसका अप्रूवल मिला और इस तरीके का इलीगल बिल्डिंग वहां खड़ी हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के निवासियों को, आसपास के निवासियों को जो कोर्ट गए और उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। इलाहाबाद, ये एक सवाल है, कानूनी प्रक्रिया भारत में बहुत लंबी है, ये हमने देखा है और सबने इंतजार भी किया है, उसका सम्मान किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि जो लाइन आप कोट कर रहे हैं कि एक रिश्ता था जो दिख नहीं रहा था, जो अंधेरे में बना था कि 14 मंजिल की इमारत 32 मंजिल की बन जाती है, 40 मंजिल की बन जाती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहीं एक खाई थी जो चेक नहीं किया गया, कि पता नहीं किया गया कि उच्चतम न्यायालय इतना कुछ कह रहा है बिल्डर्स को लेकर, लेकिन बिल्डर्स के हौसले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है, उनको लॉ का भी डर नहीं है। देखिए, उसके पीछे वजह यही है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सरकार और जो अथॉरिटी के लोग हैं उनके पास होती है। तो और कोर्ट में मामला जब जाता है तब कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। कोर्ट बहुत ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले होते हैं जिनमें सुओ मोटो लेती है और उनको उन मामलों को सुनती है। तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट की बजाय जो हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। मुझे लगता है कि अब और कुछ दिनों पहले महाराज जी ने कहा भी है कि हम इसको इन बिल्डरों की लिस्ट बनाएंगे जो ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये जो नोएडा अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, बिना इनकी मिली भगत के, बिना जरूरी भी है सर, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जब नोएडा एनसीआर कोई आता है, दिल्ली एनसीआर आता है, तो वो एक सपना लेकर आता है। आशियाना यहाँ लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन ऐसे कोई बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, नोएडा प्राधिकरण पर भी, बिल्डर्स पर भी। पवन त्रिपाठी का रुख करते हैं, सुबह से वो वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पवन, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? हमारे साथ में जो विस्फोटक विशेषज्ञ मौजूद हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है ये जमींदोज की जाएगी। आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की पहल थी जो आज ये फैसला आया और ये सब हो रहा है। फिलहाल क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रहा है?
बिल्कुल। देखिए आनंद जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने हर एक इंस्टेंस देखा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो ट्विन टावर है, अभी ये कितना शांत मौसम, कितना शांत वातावरण है, लेकिन इससे पहले जब विस्फोट होने से पहले काफ़ी हलचल थी। अब इंतज़ार किया जा रहा है जो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद जो रिजल्ट आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर 100 किलो विस्फोटक लगेगा, 200 लगेगा या 500 लगेगा। और सबसे बड़ी बात है जो अगल बगल में घर है, मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा जो अगल बगल में घर है, मैं आपको इस घरों की खामोशी दिखाता हूं। यहां पर कोई भी हमें सुबह से बालकनी तक में नहीं दिखाई दिया है। यानी डर, अंदर डर और भय जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव में बनी हुई बिल्डिंग के कारण बना हुआ है। आप साफ तौर पर देखिए इन बिल्डिंगों के छज्जे पर लोग शाम को, दोपहर में या सुबह खड़े होते थे, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत जल्द से जल्द गिर जाए और उसके बाद जो उन्हें लगातार 10 सालों से 11 सालों से लगातार जो कष्ट था वो दूर हो। लेकिन डर भी है मन में और इस डर के चलते लोग अभी बाहर निकलकर हमसे बात भी नहीं कर पा रहे। हमने सुबह से कई सोसाइटियों में जाकर बात करने की कोशिश की, लोगों ने साफ मना कर दिया, बोले भाई साहब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और ये ट्विन टावर गिर जाए, हम यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरे। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिसको ये जिम्मेदारी मिली है नोएडा प्राधिकरण को या जिन अधिकारियों को, वो ये बात नहीं देख रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। लौट रहे हैं आपके पास में आनंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बात प्रदूषण की भी हो रही है। इतनी बड़ी जब बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी, निश्चित तौर पर प्रदूषण होगा। जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें बनती है तब इतना प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ये हाल है, तो जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी तब क्या ऐसा मापदंड है, हम देखें कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी भी जो है कोशिशें कर रही है कि मापा जाए कि कितना प्रदूषण होगा, उससे भरपाई कैसे की जाए। देखिए प्रदूषण बिल्डिंग गिरने से जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है और वो डस्ट थोड़ी देर में ही डिसिपेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान अथॉरिटी ने और एडिफिस इंजीनियरिंग ने बनाया हुआ है। उस प्लान के तहत वहाँ फायर टेंडर रखे जाएंगे और गिरने के तुरंत बाद उसमें वाटर स्प्रे करके प्रदूषण को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, जो ऑलमोस्ट कर लिया जाएगा। अगर एयर फ्लो अच्छा है तो प्रदूषण बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ज्यादा टाइम उसमें क्लियर होने में नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के कई बिल्डिंग हम लोग गिरा चुके हैं और उनमें देखा गया। कितनी बिल्डिंग सर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गिराई होंगी जो अब ये बता रहे हैं कि हाँ होगा? मैंने अभी तक 100 मीटर से ऊंची लगभग 16-17 बिल्डिंग गिरा दी हैं, जो इंडस्ट्रियल ज्यादा हैं। और ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो तो सिर्फ 5 बिल्डिंग अभी केरल में गिरी थी। उसके बाद ये 32 फ्लोर की तो पहली बिल्डिंग इंडिया में गिर रही है। ये पहली मंजिल है इतनी बड़ी जो आप लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। 32 मंजिल की बिल्डिंग अभी तक इंडिया में नहीं गिराई गई, ये पहली बार यहाँ गिराई। आप लोगों के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, मतलब कि आप लोगों को सेफली भी काम करना है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज भी कर देनी है। हाँ बिल्कुल, सेफली काम करना है और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए इसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आसपास के लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो विस्फोटक हैं वो एक टाइम गैप के साथ काम करते हैं और बिल्डिंग धीरे धीरे करके एक सीरीज ब्लास्ट होती हुई नीचे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत ज्यादा वो पैनिक करेगी, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत करेगी। ये काफी सेफ प्रक्रिया है और आजकल वर्ल्ड वाइड इम्प्लोजन टेक्निक ही काम में ली जा रही है, क्योंकि ये सस्ती और जल्द पूरा होने वाली प्रक्रिया है बिल्डिंग डिमोलिशन। विक्रम जी, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर चेताया है, बिल्डर्स को लेकर शिकायतें समय समय पर पहुंचती रही हैं, लेकिन आज भी जितना दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या रोटी कपड़ा है, उतनी बड़ी समस्या मकान हो गया है और खास तौर पर यही पोजीशन वाली समस्या है। आगे देख रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से या तो चेक लगाया जाए, जब आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, सरकार की बन जाती है, या कोई ऐसा ठोस कानून लाया जाए जो आदमी को परेशान ना होना पड़े कि पैसा देकर भी पोजीशन नहीं मिल रहा है, आशियाना नहीं मिल रहा है और उसके बाद बिल्डिंग तक जमींदोज कर दी जाती है। बिल्डर तो कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां से देंगे, फिर आखिर में आके दिक्कत तो आम आदमी को उठानी पड़ रही है। देखिए, अगर आप कानून की बात करें, कानून हिंदुस्तान में इतने हैं कि वो पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा है। उन कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है और कानूनों की आप बात करें तो आप इतने कानून का पूरी जीवन अगर कानून पढ़ते रहिए हिंदुस्तान के, तो कानून पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ न कुछ आपसे छूटा रह जाता। तो कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है और कानून का क्रियान्वयन यही अधिकारी और सरकारें करती हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है कि जो कानून है उनका पालन हो, लोगों को बार बार कोर्ट से। अब यही मामला देखिए आप कि कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ा, कितना संतोष करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद जो उसी ऑर्डर को
सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन वो कितना समय इसमें लगता है आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की कोर्ट कचहरियों में कितना समय लगता है, 4-4 साल 10 साल एक पीढ़ियां बीत जाती हैं कानून और कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो ये इतना साहस और इतना आपके अंदर धैर्य है तभी आप कोर्ट कचहरी आपको जाना है। तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं अपना भ्रष्टाचार थोड़ा कम कर दें या बंद कर दें और सरकारें ये कोशिश करें कि जिससे लोगों को कम से कम अदालतों का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, क्योंकि 1.5 करोड़ केस ऑलरेडी पेंडिंग है और उसमें आप समझ सकते हो कि केसेस की सुनवाई कैसे होगी और केसेस कैसे जल्दी जल्दी निपटेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा आज भी कानून पर है, न्याय प्रक्रिया पर है, इसीलिए लोग बाद में आकर न्याय प्रक्रिया के लिए या न्याय के लिए आपका ही दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में पवन, आप सुन रहे होंगे रुद्र विक्रम सिंह जी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और कई बार धैर्य इतना बढ़ जाता है, आदमी टूटने लगता है कि जिसके लिए जिंदगी भर कमाई की वो आशियाना तो मिला नहीं बल्कि जमींदोज हो रहा है। और बाकी में आकर बिल्डर ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो सारा पैसा इसमें लगा दिया। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हो या फिर दिल्ली एनसीआर के जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसमें जरूरत है कि सरकार या अधिकारी द्वारा उतना चेक प्रॉपर लगाया जाए, पता चले, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी इमारत नहीं बनती है, सालों लग जाते हैं, वहां इमारत खड़ी हो रही है लेकिन अधिकारियों को खबर तक नहीं है इस बात की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये बिल्डिंग मेरे पीछे, मैं एक बार और दिखा दूं आपको, क्योंकि अब लगातार देखनी पड़ेगी और 22 तारीख के बाद ये दिखाई नहीं देगी यहां पर, इसीलिए यादगार बिल्डिंग है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा खूब ध्यान से देखें, यादगार बिल्डिंग है ये, 22 के बाद ये नहीं दिखाई देगी, अगले महीने 22 के बाद। और सबसे बड़ी बात है 11 साल से ज्यादा का समय इंतजार आसपास की सोसाइटियों को करना पड़ा। ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हो रही इमारत ऐसे ही नहीं खड़ी हो गई रातों रात, धीरे धीरे एक एक फ्लोर बनता गया, नोएडा अथॉरिटी में फाइल्स जाती गई, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने उन फाइल्स को ओके करते गए और धीरे धीरे ये बिल्डिंग अपने शेप और साइज में आती गई। 32 माले की बिल्डिंग बनाना, इतनी ऊपर तक ये बिल्डिंग ले जाना आसान नहीं था, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये बिल्डिंग आज यहां तक पहुंची है। एक चेकलिस्ट बनती है, एक जगह पर एक गैप, एक क्रॉसिंग होती है, रोका जाता है, बैरियर्स होते हैं, लेकिन उन बैरियर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए आज जनता भी परेशान है, जनता की कमाई के पैसे भी यहां पर लग रहे हैं, उसी से ये डिमोलिशन भी किया जा रहा है, उसी से ये कंस्ट्रक्शन भी किया गया और जनता बेचारी आज भी हाथ मलती रह रही है कि उसको उसका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जो बैरियर्स आपने कहा है ना, बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरियर्स हैं, लेकिन ये अधिकारी उन बैरियर्स को हटाकर, उनको उठाकर इन जैसे इलीगल कामों को आगे बढ़ाते हैं और जिसका परिणाम ये ट्विन टावर यहां पर खड़ा है। और अब जिसको ध्वस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लग रहा है और ये पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देना है, माफ कीजिएगा सुपरटेक को देना है। सुपरटेक को अपनी जेब से तो देगा नहीं, उन्हीं बायर्स के पैसों को देगा जो आप एक रुपए इकट्ठा करके अपना घर खरीदते हैं। दिल्ली एनसीआर में आप कोशिश करते हैं कि आप आशियाना खरीदें, लेकिन बाद में आकर बिल्डर्स इस तरीके से हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आनंद जी एक आखिरी कॉमेंट, आप अभी एक पिक्चर देख रहे थे, आप कह रहे थे कि इस तरीके से जमींदोज नहीं होगी, बिल्डिंग को एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक एक करके जैसे हम स्टेप चढ़ते हैं वैसे ध्वस्त किया जाएगा। जरा एक छोटा सा रिएक्शन उस पर आप देते हैं। मैडम इस बिल्डिंग को एक तरफ से विस्फोट होना शुरू होगा इसमें। हाँ। जो 9 सेकेंड या 8 सेकेंड की जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। वो वैसे होगा कि 1 सेकेंड में एक साइड के कॉर्नर साइड के रोड साइड के पिलर्स जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो पिलर जाएगी उसका नेक्स्ट जाएगी, ऐसे 1 बाय 1 जाएगा। तो ये बिल्डिंग हाँ। एक साइड से पहले गिरेगी और दूसरी साइड में इंटेक्ट रहेगी, फिर धीरे धीरे गिरती हुई लास्ट में जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, जिससे जमीन पे इसका इम्पैक्ट कम होगा और किसी तरह का एयर वाइब्रेशन नहीं होगा और एयर ब्लास्ट नहीं होगा और ये सीरीज में वन आफ्टर अनदर पूरी लाइन की लाइन बिल्डिंग की गिर जाएंगी, ये एक साथ जमीन में नहीं बैठेगी। तो चलिए ये चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि जैसा आनंद जी ने भी कहा कि ये पहली बार होने जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत भारत में, सिर्फ नोएडा में नहीं, फिर सुनिए, सिर्फ नोएडा में नहीं भारत में जमींदोज की जाएगी, क्योंकि ये इमारत भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसी इमारतें बन जाती हैं लेकिन अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कैसे गिराए जाएंगे ट्विन टावर, इसके लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने डेमोलिशन एक्सपर्ट से खास बातचीत की।
हम इस वक्त नोएडा में हैं और हमारे पीछे यही ट्विन टावर है जिसका आज टेस्टिंग होना है, जिसको फाइनली गिराया जाना है। और हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा हैं जो माइनिंग एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से डिमोलिशन होता है इसका वो सारा काम देखते हैं और ऐसे डिमोलिशन में इनसे बात करेंगे किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम देख रहे हैं कि ये जो ट्विन टावर है इसके आसपास क्या ध्यान रखना होगा जब ये बिल्डिंग को फाइनली जब डिमोलिश किया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो इम्प्लोजन या ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेफ होती है, इसमें किसी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सप्लोजिव की क्वांटिटी कितनी लगानी है, कैसे उसको कवर करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट किया जा रहा है। उससे बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि क्वांटिटी इस क्वांटिटी में कितनी कहाँ लगानी है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा जा रहा है कि जब इस तरह की डिमोलिशन होते हैं तो डस्ट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम देख रहे हैं कि आसपास बिल्डिंगों को भी कवर किया गया है। डस्ट एक इशू इस तरह की चीज़ों में रहता है, लेकिन यहाँ वाटर स्प्रे के और पानी डालने के कुछ अरेंजमेंट फायर टेंडर्स के किए जाएंगे। डस्ट को तुरंत सप्रेस किया जाएगा। डस्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, तो उतना तो टॉलरेबल होता है, वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर, अगर हम जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इंडिया में इससे पहले सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए क्या था और इस बिल्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम टास्क की बात करें एज पर बिल्डिंग्स आर कंसर्न, बिल्डिंग्स की बात करें तो इंडिया में इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग डिमोलिशन कोची में हुए थे, जहाँ 5 बिल्डिंगें गिराई गई थी और वहाँ पर तो जो हैबिटेंट था या लोगों के घर थे वो इसके भी नज़दीक थे और सेफली हो गए थे। कोई ऐसी चुनौती वाली बात नहीं है, सब अच्छा है। और हाई राइज स्ट्रक्चर इस तरह के अभी तक काफ़ी गिरा चुके हैं, काफ़ी बिल्डिंग और डिमोलिशन हो चुका है। 18-20 डिमोलिशन तो मैंने भी किए हुए हैं और ये सेफेस्ट है। बिल्कुल, देखिए एडिफिस कंपनी के जो कंसल्टेंट हैं आनंद शर्मा जी, जिनसे सुबह भी हमने बात की थी, डेमोलिशन एक्सपर्ट, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले भोपाल में बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के टावर्स को गिराया है, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, अंदर जो ब्लास्ट लगाया गया था, क्या कितने हद तक सफल रहा और कितने हद तक आगे आने वाले समय में ये फायदेमंद रहेगा ये ट्रायल ब्लास्ट? ये ब्लास्ट पूरी तरह सफल है और इसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि किस क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालने से कितना उसका इम्पैक्ट रॉ कंक्रीट के ऊपर रहता है। यानी आप लोगों ने जो ब्लास्ट किया था सारे कॉलम्स में, वो बिल्कुल आपको आप लोगों को लगा आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल मुताबिक है और रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो क्या स्थिति थी अंदर? अभी पूरी तरह से वो विजिबल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है, वो ठीक है, वो ब्लास्ट हो गया है परफेक्ट। और उसका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना इम्पैक्ट है उसका कंक्रीट के ऊपर, वो उसको स्टडी किया जाए। माना जाए आज जो ट्रायल या टेस्ट ब्लास्ट जो था वो पूरी तरीके से सफल रहा। अब 22 तारीख को बस ये देखना होगा कि कितनी अमाउंट में हमें क्या क्या एक्सप्लोजिव मंगाना। इस ब्लास्ट से हम जो है ना चार्ज डेंसिटी उसकी वर्कआउट करेंगे बिल्डिंग की और उसी हिसाब से एक्सप्लोजिव उसमें प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल, तो आनंद शर्मा जी थे, ये डेमोलिशन एक्सपर्ट है, कई बिल्डिंगें उन्होंने गिराई हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं सीधे यहाँ पर ये मेरे साथ मौजूद हैं। क्या वो हमें इस बात का आइडिया दे सकते हैं कि अब विस्फोटक जो किया जाएगा उसमें कितनी सामग्री का इस्तेमाल होगा, उसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी? बिल्कुल, आनंद जी से हम ये सवाल पूछते हैं। आनंद जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कितनी सामग्री, लगभग इसमें कितना बारूद, कितनी सामग्री इसमें लगेगी और आने वाले समय में क्या तैयारियां आप लोगों की रहेंगी? नहीं, ये अभी मैंने वर्कआउट नहीं की है, ये जेट डिमोलिशन की टीम ने वर्कआउट की होगी, तो इसके बारे में सही फिगर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लगभग एक अंदाजा अगर हमें लगा जाए 5 किलो ब्लास्ट था या नहीं, अभी इसका अंदाजा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी को देखा नहीं है और जब तक मुझे आइडिया नहीं होगा मेरा बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या तैयारियां होंगी अब 22 तारीख के लिए? क्या तैयारियां? इसमें वो फ्लोर क्लीन करने हैं, ड्रिलिंग करनी है, कोर ड्रिलिंग करनी है, मलबे हटाने हैं और वही मेजर वर्क है। वो पूरा होने के बाद ही फिर ये बिल्डिंग चार्जिंग के लिए तैयार होगी। क्लीन अप जॉब है वो करने पड़ेंगे, अभी काफी काम पेंडिंग है, वो काफी काम अभी पेंडिंग है। मतलब अच्छा, हमें ब्लास्ट करने के लिए क्या हर पिलर में एक वो लगाना पड़ेगा, ड्रिल करनी पड़ेगी? नहीं, कुछ सेलेक्टेड फ्लोर हैं, उनके पिलर्स में ये ड्रिलिंग की जाएगी। शियर वॉल्स हैं, शियर वॉल्स में ड्रिलिंग की जाएगी। कुछ फ्लोर सेलेक्ट किए हुए हैं, 10 फ्लोर लगभग जो है। पवन, ये भी उनसे समझने की कोशिश कीजिए, जब विस्फोटक किया जाएगा 22 मई को, तो क्या सोसाइटी और तमाम जो टावर्स में लोग रह रहे हैं उन सबको बाहर किया जाएगा, खाली कराया जाएगा? क्योंकि 2 टावर हैं जिन्हें गिराया जाएगा, इसमें मलबा भी पूरा ढहेगा तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल,
जी बिल्कुल ठीक है आपने। मैं एक बार आनंद जी से फिर पूछता हूँ। आनंद जी, 22 तारीख को जब हम इस विस्फोट को करेंगे, इस पूरी बिल्डिंग को नीचे गिराएंगे, तो आसपास की बिल्डिंगों को क्या हमने पहले से बता दिया है, उन्हें खाली कराएंगे, क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन मेजर? इसके लिए अलग टीम है, वो काम कर रही है। डेफिनेटली सबको बता दिया गया है, प्रशासन ने सबको अवेयर किया है और अलग अलग टीम इसमें काम कर रही हैं। वो तो सबको बता के, सबको इवैक्यूएट करके, सबको हटा के ही काम किया जाएगा। पहले से ही प्रचार प्रसार हो रहा है, अगल बगल हो रहा है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन पूरी लेके ही काम किया जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो सबको सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स बताकर ही काम किया जाएगा और पहले से भी लोगों को ये लगातार बताया जा रहा है। सामने आएगा क्योंकि ट्विन टावर्स को ढाया जाएगा, मलबा सामने आएगा, वो कब तक सफाई हो जाएगी, कैसे सिचुएशन नॉर्मल की जाएगी, उसके लिए क्या तैयारी? बिल्कुल बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आनंद जी से ये सवाल पूछा जाएगा। सर, इतना बड़ा टावर है, दोनों टावर, मलबा बहुत सारा इकट्ठा होगा, बाद में किस तरीके से उसको हटाने का काम या क्या प्रक्रिया होगी? हटाने का प्रोसेस तो एक नॉर्मल ब्रेकिंग और लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता क्योंकि ये सब कुछ नीचे आ चुका होता है। और मलबा बिल्डिंग्स का इसे दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है कि हाइट है उसकी, लेकिन जब बिल्डिंग गिरती है तो वॉइड्स की बहुत ज़्यादा होती है बिल्डिंग में, इसी वजह से गिर के बहुत थोड़ा सा लगने लगेगा, मलबा कम हो जाता है। दिखने में अभी लगता है कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ये एडिफिस इंजीनियरिंग इसमें एक्सपर्ट है, ऑलरेडी इस तरह की क्वांटिटी हैंडल कर चुके हैं वो, और इसको आराम से कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि मलबा हटाने में कभी भी किसी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है, ये साफ तौर पे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।